Hello and good morning to everybody who have joined. This session is going to be a detailed breakdown of how and what kind of tools you are going to need to grow in your career. We are also going to be talking about what certifications or what is the way that you need to take to dive deeper into the niche finance. Good morning, hello everybody, and if you have any questions, please drop it in the Q&A tab or in the chat box. Once the session is complete, once sir have walked you through all of it, he will be answering those questions. So feel free to drop all your queries, and many of your queries will be automatically answered in the session itself. So please make sure you're listening carefully and you're interactive. Drop all your queries here. Sir is constantly in touch of whatever you're typing. So yes, sir, over to you. Thank you, Anjul, and good morning, all of you. Once again, Sunday morning we meet, and this particular topic, AI, quant, and the future of finance, is especially something that students may think they know, but they actually don't know. In academics, we use a term called stationary. Stationary का मतलब है जो पास्ट में regime था, that same regime will hold good in future. While no, non-stationary means that the future will be quite different from the past. So, in the chat, what do you think? Are we going to have stationary or non-stationarity in future? Yes. Rudaksh, Bhumi, Malav, Sanskar, SK Sakil. What do you think? There's going to be stationarity or non-stationarity going ahead in future? So just tone में मैंने बोला, influenced by the tone, everybody is saying non-stationarity. Obviously, it lies somewhere in the middle. There will be elements of stationarity, यानी जो पास्ट में था वही फ्यूचर में होगा, and there will be enormous elements of non-stationarity. The future will be quite different from the past. I mean to say, I have used a single sentence again and again in webinars. Let me write it on screen before you. Let me go to the Excel. So I'm going to a fresh Excel and let me write down what I believe is at the crux of everything. The ability to dig deep. The ability to dig deep is an edge and will always remain that way. And will always remain that way. Few will understand the importance of this. Okay, the ability to dig deep. But this is very, very important. Not staying at the surface, but going deep inside. Every company, every sector, every investment, every model. This is something which is stationary. There's going to be no change ever. However, the tools, next slide, the tools that are needed to dig deep are enormously changing. Those who do not use those tools will remain uncompetitive. Okay, the marketplace won't accept them. So the tools. Next slide. These tools bring about scalability and augment your analytical ability. मैंने तीनों सेंटेंस जो लिखा है मैं तीनों को मीन करना चाह रहा हूं. अगर आप ठीक से एक बार सोचें इसके बारे में, लेट्स नॉट मेक टू मच ऑफ नॉइज एंड थिंक अबाउट इट. डिग डीप हमेशा था, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा. डिग डीप पहले कैसे करते थे? We used to dig deep earlier with the help of picking up an annual report, studying it page by page, cover by cover, looking at a earnings call transcript, reading it through, meeting the management of the company.
looking at other sectoral reports, and making a deep dive into the company. This was the old analytical framework. Those who were doing that have been successful. They will also be successful in future, but they will also only be able to do that much. If they want to dig deep in future, use alternate data, which means that credit card spending कंपनी के ऊपर कितना हो रहा है. The data is sellable, Bloomberg में available है. Whether it is satellite data, it is geolocation data, it is the inventory at oil companies. So satellite images, text data, financial data, it is too much available. We call it alternate data. And that is being used. So those traditional analysts who don't use alternate data, they will be left behind. And how can you see so many things? इतना सारा चीज करें कैसे? Obviously, you need to use tools because then you can be scalable. Instead of having a universe of 100 companies, you will have a universe of 5,000 companies. अब मैं इस तरह से अगर सेशन लेते जाऊं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है. इट विल बिकम वेरी बोरिंग, बिलीव मी, एंड आई नो इट वेरी वेल बीइंग अ टीचर. सो बिकॉज ऑफ विच आई वांट टू शो सम स्टफ टू यू. पहले इजी स्टफ दिखाते हैं, ठीक है? तो पहला वाला लिखो, ट्रेडिंग. राइट ऑन ट्रेडिंग. ओके, नाउ इमेजिन वी हायर, इमेजिन लिखना प्लीज, इमेजिन वी हायर 100 traders who know nothing, who have no insight. ऐसे 100 traders को हायर किए एंड उन सबको एक कॉइन दे दिए. नेक्स्ट लाइन, गिव देम अ कॉइन एंड आस्क देम टू फ्लिप. नेक्स्ट लाइन, हेड लॉन्ग निफ्टी, टेल शॉर्ट निफ्टी. ठीक है ना? हेड लॉन्ग निफ्टी, टेल शॉर्ट निफ्टी, ये वो लोग को बोल दिए. 100 ट्रेडर्स 100 लोकेशंस पे काम कर रहे हैं. किसी किसी का होल्डिंग पीरियड रखे 1 डे. देखो, होल्डिंग पीरियड 1 डे, किसी का 2 days, किसी का 5 days, किसी का 12 days एंड सो ऑन. चर्निंग पीरियड हो गया, समझे? तो क्या होगा अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आप ट्रेडर हो, तो आज आपने टॉस किया, आपका हेड आ गया, तो आप निफ्टी को लॉन्ग कर लिए और आपको पीरियड बोला हो 5 days, तो 5 days के बाद फ्लिप करना है. समझ गए? किसी को 12 days बोला, 12 days के बाद फ्लिप करना है. ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हम लोग एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ, लेट्स शो यू द रिजल्ट. इनफैक्ट मेरे को बोलना नहीं चाहिए था कि 100 ट्रेडर्स से फ्लिप ऑफ कॉइन करवाएंगे. दिस इज द डेटा. So we are looking at the data in the first column. I am making it big, don't worry. 1st Jan 24 से, 1st Jan 24 से, ओके. ऑफ कोर्स मैंने कन्वीनियंस के लिए मार्केट प्राइस वगैरह को राउंडेड ऑफ फिगर्स लिए है मन से. तो 1st Jan 24 से ये चालू किया एंड उसके बाद स्ट्रैटेजी 1 इज 1 ट्रेडर, स्ट्रैटेजी 2 इज द सेकेंड ट्रेडर, स्ट्रैटेजी 3 इज द थर्ड ट्रेडर एंड सो ऑन. सो आई डिड इट फॉर 500 days. मैंने 500 दिन के लिए किया. लेफ्ट पे जाओ. 500 days, 1st Jan से लेके 2nd May 2025, 1st Jan से लेके 2nd May 2025. फर्स्ट जैन से लेके 2nd May 20, ये लोग के पहले, या 2nd May 2025, करीब 500 days आई डिड दिस. और ये 500 days के बेसिस पे विनर कौन आया दिखाते हैं. चलो नेक्स्ट शीट. लुक एट द 5 विनर्स, जो 5 ट्रेडर्स जीते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट देयर रिटर्न्स. Strategy number 54, trader number 54, he's produced a return of 34.2% with a volatility of 15% and a Sharpe ratio of 2.28. Sharpe ratio, you may be knowing, is the return minus RF divided by standard deviation. Okay, 2.28. तो Sharpe ratio के बेसिस पे मैंने रैंकिंग दे दी है
कि द स्ट्रैटेजी नंबर 54 इज द बेस्ट, 89 सेकंड बेस्ट, 13 थर्ड बेस्ट, 82 फोर्थ बेस्ट, 26 फिफ्थ बेस्ट, एंड द रिजल्ट्स आर फिनोमिनल। बाप रे, लुक एट द रिटर्न्स, द रिस्क एंड द शार्प रेशियो। इस तरह का शार्प रेशियो नोबडी मैन्युफैक्चर्स। लास्ट कॉलम इज द ड्रॉडाउन, कि सर इन दिनों में मैक्सिमम ये लोग कितने नीचे गए थे। तो फर्स्ट ट्रेडर 10.9% गिरा था, सेकंड 16.6% गिरा था, वगैरह वगैरह। एंड अकॉर्डिंगली अपने फर्स्ट ट्रेडर को 500 करोड़ दे दिए। ऐसा लगा कि यार ये बहुत ही लकी है, इसको अपने 500 करोड़ दे देते हैं। ओके, वी गिव हिम 500 करोड़। एक बार मैं चैट पे आता हूँ टू सी योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस। यस प्लीज, योर ऑब्जर्वेशंस। लेट्स, यस प्लीज, योर ऑब्जर्वेशंस। अभी तक जो मैंने बोला उसमें व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशंस? ऑब्जर्वेशन कुछ और ही चल रहा है। विल वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? आई थिंक इट इज रिकॉर्डेड और मिलेगा, बट नॉट 100% श्योर। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यस, विकास इज सेइंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। I will say game of shittiness, nothing more than that. It just goes to show that if you abuse AI and quant and you use them in a random fashion, how can you believe that something is great when it is not great? किसी किसी को ऑडियो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते भाई तुम्हारा। ये जूम चल रहा है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है तो आपके तरफ का प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जूम के अंदर घुस के। सचिन इज सेइंग ऑनेस्टली, नहीं, कौन, ऋतुराज, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऑनेस्टली। शुडंट इट बी वॉच्ड? CFA लेवल 1 स्टूडेंट्स, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अभी तक तो कुछ समझाया ही नहीं। विच फॉर्मूला हैव यू यूज्ड? तो ऋतुराज तुम लीव कर सकते हो अगर नेगेटिव मेंटालिटी के साथ बैठे हो। वी आर सेइंग दैट एवरी डे हेड करो तो बाई कर लो, टेल करो तो सेल कर दो। ठीक है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो ऋतुराज यू कैन लीव, वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय योर लीविंग, नो इश्यूज। स्टडी फॉर द CFA प्रोग्राम, स्टडी द बुक्स, पास द एग्जाम। ठीक है, हटाओ, रिमूव द चैट्स। आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट्स। ये इन सैंपल डेटा का परफॉर्मेंस है। अब स्ट्रैटेजी नंबर 54 को 500 करोड़ दे दिए, वी गेव हिम 500 करोड़, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड सेकंड में के बाद। सेकंड में के बाद क्या हुआ, वो हाइड कर रखा था कॉलम्स, उस पर दिखाते हैं। तो सेकंड में के बाद का परफॉर्मेंस क्या हुआ, उसको बोलते हैं आउट ऑफ सैंपल। आउट ऑफ सैंपल मतलब एक डेटा से टेस्ट किए थे, सॉरी, एक डेटा से ट्रेन किए थे, अब दूसरे डेटा पे टेस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 100 डेज, 200 डेज क्या परफॉर्मेंस हुआ स्ट्रैटेजी नंबर 54 का? 8% नेगेटिव रिटर्न, 16.1% वॉलेटिलिटी, एंड शार्प रेशियो -0.5। So look at the pathetic performance which has happened. We don't need the full period. Look at the pathetic performance which has happened. 8% negative return, 8% negative return. It just goes to show the effect of data mining. When you will study, even study the CFA or the FRM program, you will find that वहां पे एक dialogue है. There are lies, there are damned lies, and there is statistics. डेटा और स्टैटिस्टिक्स इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, कोई लिमिट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू ट्रेन द डेटा एंड यू टेस्ट आउट ऑफ सैंपल। सर ये सब अपने करिकुलम में है क्या? ऑफ कोर्स है। वी हैव डेटा माइनिंग बायस। अगर कोई लेवल 2 लेवल 3 या उसके बाद के स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं, ये वाला सेशन, तो दे विल रिमेंबर डेटा माइनिंग बायस कितने बार पढ़े हैं। दिस एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट डेटा माइनिंग बायस, कि देर आर इलॉजिकल स्ट्रैटेजीज, फ्लिप ऑफ कॉइन, उससे ट्रेडिंग कर रहे हैं लेफ्ट साइड, एंड समबडी इज प्रोवाइडिंग अ वंडरफुल रिपोर्ट। कैन यू शो द चार्ट, क्या परफॉर्मेंस हुआ मार्केट वर्सेस दिस? ओके, लुक एट द चार्ट राइट साइड में। राइट साइड में जो चार्ट है, द चार्ट, ये जो फर्स्ट वाला चार्ट है, इट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रैटेजी 54 वर्सेस मार्केट इंडेक्स। निफ्टी का रिटर्न वो ग्रे वाला है, और स्ट्रैटेजी 54 का रिटर्न जो है वो रेड वाला है। द लेजेंड्स आर देयर। सुपर परफॉर्मेंस बाय द स्ट्रैटेजी, बट दिस इज इन सैंपल। ओके, दिस इज इन सैंपल, मतलब जिस डेटा पे टेस्ट किए थे 500 डेज, उसके बाद जब इसको दे दिए रुपया, तब क्या हाल हुआ नीचे देखो। स्ट्रैटेजी 54 वर्सेस द मार्केट।
There's a term I use while teaching these programs called Chupa Rustam. Okay, Chupa Rustam. What was the technical term for it? Uh, Closet indexing. Yeah, closet indexing. क्लोजेट इंडेक्सिंग क्या होता है पता है? आपसे पैसा ले लिया एक फंड मैनेजर और आपसे फीस ले रहा है, बोल रहा है मैं क्या सुपर परफॉर्मेंस करूंगा, और एक्चुअली कॉइन टॉस कर रहा है. यू आर पेइंग हिम फीस एंड ही इज एक्चुअली डूइंग अ कॉइन टॉस एंड यू आर पेइंग हिम फीस. तो इसको बोलते हैं छुपा रुस्तम, जिसमें कैलिबर नहीं है, कर रहा है पैसिव कुछ भी, और अल्टीमेटली जाके आपका पैसा बर्बाद होने वाला है. ठीक है. सो दिस इज द अरीना ऑफ द अब्यूज ऑफ क्वांट्स. If you talk about AI, quants, and the future of finance, I cannot be just gung ho about what can it do. बट इससे आपको अगर डिसरिस्पेक्ट हुआ इसको, तो लेट मी एक्सप्लेन हाउ क्वांट्स इज fundamentally being used and should be used, and how AI is being used. Let's come to the blank Excel sheet, the blank Excel sheet that we were using. Yeah. अब ध्यान से दीजिएगा. दिस इज टीचिंग. ओके, टीचिंग 101 happening, which Rituraj may have left. He will not see, others will see. सुनना प्लीज. लिखना. Should we invest stocks? Should we invest in stocks of high quality or low quality? Yes, please. Should we invest in stocks of high quality or low quality? Can I see the chat? Should we invest in stocks of high quality or low quality? ऋतुराज चला गया है, बाकी लोग का पूछ रहा हूँ. ओ ऋतुराज है, बोल रहा मैं हूँ. High quality. Good. And how do you judge the quality of a stock? How do you judge the quality of a stock? How do you judge the quality of an investment? कोई बोल रहा है वैल्यूएशन, कोई बोल रहा है अर्निंग्स, कोई बोलता है फाइनेंशियल, कोई बोल रहा है पी रेशियो, कोई बोल रहा है कंपनी परफॉर्मेंस, कोई बोल रहा है मैट्रिक्स, कोई बोल रहा है रिलेटिव परफॉर्मेंस, रिटर्न्स, मैनेजमेंट. ओके, मेजरिंग रिस्क. ओके, चलो लेट्स एंड द चैट. एक बार ऐड चैट को एंड करते हैं. बगल में, इन कॉलम नंबर एफ पर बगल में लिख लो क्वालिटी. क्वालिटी. या तो क्वालिटी इज वन फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है. एंड क्वालिटी में बी जज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लाइक आरओई. लिख दो नीचे आरओई. और विद द हेल्प ऑफ मेनी अदर मेजर्स यू कैन टेक फॉर द पर्पस ऑफ. एक बार आरओई लिखते हैं तो क्वालिटी को आरओई से कैप्चर कर रहे हैं. आई एम यूजिंग अ सिंगल पैरामीटर टू मेजर क्वालिटी. आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी. सबको पता होगा, नहीं पता है तो मुंह से शब्द बोलो, समझ में आ जाएगा. रिटर्न ऑन इक्विटी. समझ गए? फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. व्हाट इज द फर्म अर्निंग ऑन इक्विटी फंड्स? नेक्स्ट. Should we invest in stocks? Should we invest in value stocks? Should we invest in value stocks? Value stocks matlab those which are like which are having low price multiples. Okay, लिख दो value, क्वेश्चन मार्क करके value. We should invest and यहाँ कर देते value. और वैल्यू के नीचे सपोज आई एम मेजरिंग वैल्यू वाया से प्राइस अर्निंग्स रेशियो, पी रेशियो, और आई कुड हैव टेकन अर्निंग्स टू प्राइस रेशियो. जिसका पी रेशियो लो है दैट्स अ वैल्यू स्टॉक. वेरी बैड डेफिनेशन बट एक बार चलेगा. ठीक है ना? ओके, जिनका पी रेशियो गिरा हुआ है दे आर वैल्यू स्टॉक्स. जिनका हाई डिविडेंड यील्ड है, हाई पीबी रेशियो है, बहुत सारा और फैक्टर्स है, मैं एक बार ले रहा नहीं. शुड वी इन्वेस्ट, शुड वी इन्वेस्ट इन मोमेंटम स्टॉक्स? Momentum stocks are those which are in the limelight, which are in the limelight, which are giving a high return. तो होता है ना inertia. Since they have provided high return in the recent past, they'll perform in the future. Okay, high returns. तो लिख दो momentum. Momentum मतलब जो चल रहा है उसी को पकड़ना. Okay, momentum. Momentum can be captured by say 12-month return. जिनका 12-month return high है, you can take 6-month return or 3-month return, whatever. 12-month return लिख दिया मैंने. Should we invest in less risky stocks? In less risky stocks, you may like, because we are all risk averse. Less risky stocks तो लिख दो low risk. Low risk इसको मेजर कर लेंगे वॉलेटिलिटी से या फिर बीटा से. आई एम राइटिंग वॉलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, बीटा मत लिखो. वॉलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके, ब्रैकेट एसडी, स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये चार फैक्टर्स है. जस्ट शो कॉलम नंबर एक थोड़ा सा छोटा करके.
या तो ये चार फैक्टर्स है। या क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम, लो रिस्क। आई वुड लाइक यू टू फील ऑल द फोर फैक्टर्स: क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम, लो रिस्क। कभी कभी ऐसा मौसम होता है कि क्वालिटी स्टॉक्स प्रोवाइड मैसिव रिटर्न, कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यू स्टॉक्स प्रोवाइड मैसिव रिटर्न, कभी कभी मोमेंटम वर्क्स एंड कभी कभी लो रिस्क वर्क्स। सो दीज वर्क इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। काश पता चल जाता विच पर्टिकुलर फैक्टर इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने 10 कंपनीज लेंगे, विल टेक 10 कंपनीज, और वो 10 कंपनीज का आरओई, पी रेशियो, 12 मंथ रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन वो अपने को पता रहेगा। अकॉर्डिंगली वो 10 कंपनीज को अपने रैंक कर देंगे, बेस्ड ऑन आरओई, बेस्ड ऑन पी रेशियो, बेस्ड ऑन 12 मंथ रिटर्न, बेस्ड ऑन लो रिस्क। और रैंक करने के बाद वी विल वे दीज फैक्टर्स। सपोज क्वालिटी को देखो, क्वालिटी को प्लीज राइट डाउन। क्वालिटी का वेट है सपोज 25%, वैल्यू का वेट है सपोज 30%, मोमेंटम का वेट है सपोज 15%। कितना हो गया? 30 बचा। लो रिस्क का वेट है सपोज 30%। तो मैं ये चारों को वेट दे दूंगा, इन चारों फैक्टर्स को वेट दे दूंगा, और उसके बाद मैं हर स्टॉक का कंपोजिट स्कोर निकालूंगा कि व्हाट इज द कंपोजिट स्कोर। सो आई हैव डन दैट। ठीक है, आई एम शोइंग यू दिस शीट। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग इज द इन थिंग। सबसे ज्यादा पैसा अभी दुनिया में फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग पे लगा हुआ है। दिस इज नॉट थियोरेटिकल स्टफ, दिस इज एक्चुअल स्टफ। तो हैव अ लुक, मैंने ये 10 कंपनीज ली है: हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, मारुति, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, अदानी, इन्फोसिस, ओके, अपोलो। तो आई हैव टेकन दिस 10 कंपनीज। ऑफ कोर्स वन कैन टेक अ वाइडर, आई हैव टेकन 10 कंपनीज। ये लोग कौन से सेक्टर में है वो लिख दिए। सेक्टर का भी अलग से कुछ डाल सकते थे, फैक्टर अपने डाले नहीं है। उसके बाद उनका पी रेशियो, उनका आरओई, उनका रेवेन्यू ग्रोथ जो मैं यूज नहीं कर रहा हूं अभी, उनका डेट इक्विटी विच आई एम नॉट यूजिंग राइट नाउ, उनका 12 मंथ मोमेंटम, ठीक है, उनका वॉलेटिलिटी। तो ये सारा लिख दिया। अब लिखने के बाद इनको रैंक किया वैल्यू के बेसिस पे रैंक। तो वैल्यू के बेसिस पे रैंक कौन से बेसिस पे? आरओई के बेसिस पे। देखो आरओई में फर्स्ट रैंक मिला है कौन से स्टॉक को? आरओई में, वैल्यू में सॉरी, वैल्यू में तो पी रेशियो, क्वालिटी में आरओई। लेट्स गो टू क्वालिटी पहले। क्वालिटी में जाओ, क्वालिटी में आरओई। तो फर्स्ट रैंक मिला है सेकंड लास्ट स्टॉक को। क्वालिटी में फर्स्ट रैंक किसको मिला है? सेकंड लास्ट स्टॉक को। सेकंड लास्ट स्टॉक, सेकंड लास्ट स्टॉक कौन सा था दिखाओ लेफ्ट में? इन्फोसिस। इन्फोसिस का 31.8% है। कैन यू सी दैट? इन्फोसिस का आरओई 31.8% है। इट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल। सेकंड हाईएस्ट है 30.6 हिंदुस्तान यूनिलीवर का। थर्ड हाईएस्ट किसका है? थर्ड हाईएस्ट इज 21.9 अपोलो का। दीज फिगर्स आर एक्चुअल फिगर्स विच आर पुल्ड फ्रॉम वाइट शीट। ये फिगर्स एक्चुअल फिगर्स है जो वाइट शीट से पुल किए हुए। ना वाइट शीट इज अ टूल। वाइट शीट इज अ टूल। हैव यू हर्ड ऑफ वाइट शीट? ओके, वी यूज इट abundantly. हैव यू हर्ड ऑफ वाइज शीट? तो वाइट शीट से पुल किए। या सम पीपल हैव हर्ड सुमन वर इज सेइंग यस सर। सैमसंग से जो ज्वाइन किया, यस सर। काव्या, यस सर। मुंदर, ये नहीं। संस्कार जैन, यस सर। एनीवेज क्लोज करो। भाई वाइट शीट का डेमो तो दे नहीं पाएंगे, नाम बोल सकते हैं डेफिनेटली। सर ये सारी शीट्स हम लोग से शेयर हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स शेयर होगी। देर इज नथिंग प्रोप्राइटरी अबाउट इट। जो बंदा पब्लिक मासेस में खड़े होके ये सब बोलता है ना कि दिस इज प्रोप्राइटरी स्टफ, कैन नॉट शेयर दिस विथ यू, आई रियली फील दैट देन व्हाट इज एजुकेशन अप टू नाउ? एजुकेशन कहाँ चला गया? या तो बताओ ही मत ना, क्या प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटरी बोलेंगे? एवरीथिंग विल बी शेयर विथ यू सो दैट यू कैन वर्क अपॉन इट एंड यू कैन मैनिपुलेट इट फर्दर। तो अकॉर्डिंगली आरओई के हिसाब से रैंक कर दिए, पी रेशियो के हिसाब से रैंक कर दिए, पर लो पीई को रैंक 1 दिए। पी रेशियो में लो पीई को रैंक 1 दिए। लो पीई बिकॉज वी वांट वैल्यू स्टॉक्स। लो पीई किसका है? लो पीई 12.8 है क्या? 1 दिखाओ लेफ्ट साइड में। 12.8 दैट्स द लोएस्ट पीई। उसको रैंक 1 दिए बिकॉज लो प्राइस स्टॉक है। समझ गए? 13.4 को इन्फोसिस को रैंक 2, गिरा हुआ है आईटी सेक्टर। समझ गए? एंड सो ऑन। तो यू अंडरस्टूड, रैंकिंग समझ में आ गया आपको? ठीक है,
तो शो द रैंक्स, शो द रैंक्स। तो देखो वैल्यू का रैंक है पी रेशियो के हिसाब से, क्वालिटी का रैंक है आरओई के हिसाब से, मोमेंटम का रैंक है 12 मंथ रिटर्न के हिसाब से, आई एम नॉट शोइंग, लो रिस्क का रैंक है कमती स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से। ये रैंक आ गया। अब इस रैंक के बेसिस पे ऊपर में वेट्स दिया था, ऊपर में वेट्स देख लो, इन चारों फैक्टर को वेट दिया था। क्वालिटी को 30%, सॉरी, वैल्यू को 25%, क्वालिटी को 30%, मोमेंटम को 25% और लो रिस्क को 20%। ये मत बोलना सर उधर शीट में आपने अलग बोला था, अरे यहां पे इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, ये वेट्स है। तो वेटेड स्कोर निकाला, आओ, वेटेड स्कोर निकाला, कंपोजिट स्कोर। और ये जो कंपोजिट स्कोर निकाला, वो कंपोजिट स्कोर सबसे हाईएस्ट किसका आया? 0.73 शायद, वो आपको ब्लू उससे ही दिख रहा होगा शेड से, 0.73 सबसे हाईएस्ट आया। उसके बाद आया 0.73 इंफोसिस का था, फिर आया 0.62, फिर आया 0.65, किसका है 0.65? अपोलो का, 0.65 अपोलो का था 0.65। उसके बाद 0.62, 0.62 किसका आया? एनटीपीसी। तो इफ आई हैव टू सेलेक्ट 3 स्टॉक्स, 3 मंथ से बोल रहा हूं, इफ आई हैव टू सेलेक्ट 3 स्टॉक्स आउट ऑफ दिस, तो इन दैट केस द 3 स्टॉक्स सेलेक्टेड आर इंफोसिस, अपोलो एंड एनटीपीसी। ओके, इंफोसिस, अपोलो और एनटीपीसी, ये तीनों सेलेक्ट हुआ है। जाओ राइट साइड में, सारा मॉडलिंग किया हुआ है इसमें, एवरीथिंग हैज बीन मॉडल्ड। कोई भी चीज मन से लिखा हुआ नहीं, जैसे देख देख के मॉडल किया हुआ है। यू विल फाइंड द फॉर्मूलाज ओवर देयर। दिखा दो फॉर्मूला सिलेक्ट में, फॉर्मूलाज आपको दिख रहा होगा ऊपर में। You must be seeing on the formula bar. Every all is coming with the help of formula. तो घर पे जब मैं शीट शेयर करूंगा तो you can apply the same. Okay, हर चीज का फॉर्मूला displayed है, hidden नहीं है। ठीक है, you can work around this. हाँ, if you don't have the time or the passion to work around it, तो in that case you remember my language, भुजिया खाओ। समझ गए? बिकॉज द फर्स्ट लाइन वॉज द अबिलिटी टू डिग डीप इज एन एज। जिसको भी कष्ट होता है उसका कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, देर इज नो वे आउट। तो ये 3 स्टॉक्स आया जिसको आपने सेलेक्ट किए, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट दिस इज द वे इट इज डन। तो इन दैट केस ये सिलेक्ट हुआ। अगर अपने वेट्स को चेंज करते, एक बार ऊपर जाके वेट्स को चेंज करते हैं, सुनो प्लीज, आने वाले टाइम पे तुमको लगता है कि सर वैल्यू स्टॉक्स आर गोइंग टू आउट परफॉर्म, गिव अ 50% वेट, वैल्यू स्टॉक्स आर गोइंग टू आउट परफॉर्म, ऐसा आपको लगता है 50% वेट। क्वालिटी इज ऑल्सो गोइंग टू आउट परफॉर्म अलॉन्ग विद इट, 30% वेट, ठीक है। मोमेंटम आउट परफॉर्म नहीं करेगा, गिव अ 5% वेट। एंड लो रिस्क विल आउट परफॉर्म। तो 50, 30, 80, 80 प्लस 5, 85 एंड 15, 15% वेट। अब देखते कैसे चेंज हुआ, लेट्स सी कौन सा स्टॉक सिलेक्ट हुआ है। ओके, स्टॉक सिलेक्शन चेंज हो गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मॉडलिंग। स्टॉक सिलेक्शन हैज चेंज, कैन यू सी? बिकॉज हम लोग वैल्यू को 50% वेट दे दिए, क्वालिटी को 30, वैल्यू को 50, क्वालिटी को 30। ओके, तो अलग अलग वेट्स दिए अपने। ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 4 फैक्टर आपने चुने, और भी तो फैक्टर्स होते हैं, हाउ डिड यू चूज द 4 फैक्टर्स? जजमेंट। 4 फैक्टर्स को आपने केवल आरओई पी रेशियो के बेसिस पे लिया, बट देर आर अदर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन क्वालिटी, यू डिड टेक द अदर्स, मल्टीपल वेरिएबल डिटर्मिनेशन नहीं। एंड सर आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे को लगता है वैल्यू आउट परफॉर्म करेगा। कैसे लगता है आपको कि वैल्यू आउट परफॉर्म करेगा, क्वालिटी आउट परफॉर्म करेगा? ठीक है, सो बिफोर आई स्पीक अबाउट दिस, लेट मी सी द हैंड्स रेज्ड एंड लेट मी कैरी आउट सम इंटरैक्शंस, बट आई विल बी वेरी सिलेक्टिव इन इट। यस प्लीज, किसने किसने हैंड रेज किया है? एक तो नीता जी ने किया है, पर उन्होंने अभी अभी L1 स्टार्ट किया है, मेरे को डर लग रहा है उनको मौका देने का। देते एक बार नीता को दो। यस नीता, गुड मॉर्निंग। You are allowed to talk. You have to unmute yourself in case you want to speak out. So I cannot hear Neeta's voice. I think आप लोग को भी नहीं सुनाई दे रहा है. So can we go to somebody else? Malav Vaidya. Can we go to Malav Vaidya? Sir, can Yes, you hear Malav. my voice? Yes, I can hear. Hi. Yes, sir. Good morning, good afternoon, sir. First time I am talking with you. So I am Tell me. feeling very good.
and grateful for your service. Thank you. Samvit, Sir, I can't. Yes, now I can hear. Yes, sir. I want to ask you that I am enrolled in CFA Level 1 program and analyst tech. I am doing that, and as my mentor says, after the 1 month the analyst tech will complete, I will have to go to the internship all in February or in May. I will give the CFA Level 1 exam. So for the internship, which is the most essential thing in finance, I need to take care of. The most essential things, principally, which I said at the beginning was number one, your attitude of exploring and digging deep into whatever it is. For example, right now there's a webinar going on. I will share the sheets with you. Of course, I know the limitations. You have just started with level one, so there could be some limitations in understanding, but then you have GPT and Claude for the purpose of asking questions on whatever you don't understand, going to the Yes. sheets, dig inside them. The ability, the attitude is the first thing. Second, since you are doing analyst stack, you will be finding that in the analyst stack program, for example, there was a session on research tools mastery. I don't know whether you attended the same or not. That was taken by BD sir, in which he showed all the tools which are used, okay, for the purpose of analyzing and how to use the tools. There was a session on documents which we should see, okay, the annual report, the initial coverage report, the earnings call, the transcript, okay, and then there were financial models made by us with the help of AI. So number one, digging deep. Number two, using the tools to dig deep. And number three, to scale it up. Of course, it's a monumental task. You will always feel that you did this much and there's yet the C's left. But if you are into it, if you are into it consistently, you will find things getting manifested in another 6 months to 12 months time. It depends on the fire with which you are doing. Okay, and sir. Only sir, one thing in for the CFS study, the CFS study, how much time I give, Your and time, for your time should be allocated 75% to CFA, 25% to analyst stack. okay, sir. Okay. Okay, thank. Thanks for speaking to me. Okay. So I don't want right now to carry out a session which is a career counseling session. Okay. Because that hurts the flow. So I'm getting back to the sheet. Okay. Let's come back to the sheet. या सो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि भाई 4 फैक्टर्स हैं, सर 4 के बदले तो 400 फैक्टर्स होंगे. आई यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इनका कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टिंग में, उसका पूरा रिसर्च पेपर बना हुआ है. दिस इज अ रिसर्च पेपर. वुड यू लाइक मी टू शेयर दैट विथ यू? दिस इज अ रिसर्च पेपर, ओके, डॉक्यूमेंटेड रिगार्डिंग विच आर द फैक्टर्स दैट आर रेलिवेंट एंड उनमें से कौन कौन से फैक्टर्स ज्यादा कमाल दिखाएं. बट रिमेंबर देयर इज अ रिस्क इन दोज रिसर्च पेपर्स. दैट हैपेंड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. हो सकता है फ्यूचर में कोई और फैक्टर वर्क करेगा, बट आपको पता तो चले. एंड आप आज पूरा नहीं एक्सप्लोर करोगे तो बाद में एक्सप्लोर करोगे. ओके. सो डेफिनेटली इफ यू वांट मी टू शेयर द रिसर्च पेपर विथ यू, आई डेफिनेटली शेयर, बट टू मच हो जाएगा आप लोग के लिए. एंड जो लोग अगर बाई चांस ये यूट्यूब वगैरह में जाता है वीडियो, तो आप मैसेज में वहां यूट्यूब में लिख देना कि सर आई एम इंटरेस्टेड, आई हैव फायर बर्निंग इन मी, आई वुड लाइक टू सी द रिसर्च पेपर एंड ऑल दीज शीट्स. ठीक है, विल शेयर दैट विथ यू. एनीवेज, अब मैं ऑब्वियसली इन 3 फैक्टर्स को इस तरह नहीं करता हूं. तो मैं क्या करता हूं, एक मिनट, बिफोर दैट लेट मी आस्क यू वन थिंग. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट स्मार्ट बीटा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग? How many of you have heard about smart beta investing? I'm looking at the chat. Okay, Aryan has heard. Athar, no. Kavya, yes. Smart beta investing. Okay, mixed bag है. Audience में से around 30% have heard of it, 70% haven't heard of it. This is smart beta investing. इसको बोलते हैं smart beta investing. It is rule based investing. रूल बेस्ड होता है, बट इसमें बहुत ही, क्या बोले, इट वॉज वेरी नाइव. तो मैंने इसका टू फैक्टर्स का किया है. दूसरे शीट में दिखा रहा हूं आप लोग को. शीट 2, कैन यू शो प्लीज? या लेफ्ट साइड.
तो यहां पे हमने दो दो फैक्टर्स को लेके किया है, वही 10 स्टॉक्स है। ओके, नीचे आते हैं। देखो इस बार क्या किया है, आई हैव टेकन टू फैक्टर्स, अर्निंग्स टू प्राइस एंड एफसीएफ यील्ड। अर्निंग्स टू प्राइस अगर हायर है, उसका प्राइस गिरा हुआ है, वैल्यू स्टॉक। फ्री कैश फ्लो यील्ड, फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय प्राइस, अगर हायर है इसका मतलब स्टॉक गिरा हुआ है। तो I have used two factors to locate value stocks. Okay, earnings to price and free cash flow yield. What is the formula for free cash flow yield? Free cash flow divided by price. What is free cash flow? अगर आपको टेक्निकली नहीं पता है तो कंपनी जनरेट्स कैश फ्लो एंड इन्वेस्ट्स इन प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट इज लेफ्ट इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो. The company generates cash flow in the cash flow statement, invests in plant and machinery, what is left is free cash flow. तो इन दोनों के हेल्प से आई हैव फाउंड आउट वैल्यू स्टॉक्स. उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी और डेट इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी और डेट इक्विटी, देखो ब्रैकेट में क्वालिटी दिया हुआ है. आई हैव यूज दीज टू फाइंड आउट क्वालिटी स्टॉक्स. 12 मंथ रिटर्न एंड 6 मंथ रिटर्न, 12 महीने में क्या रिटर्न हुआ, 6 महीने में क्या रिटर्न हुआ, उसके हेल्प से आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट मोमेंटम स्टॉक्स. नेक्स्ट, volatility and beta के help से I have tried to find out low risk stocks, because I know that this session may be attended by level 2 level 3 students, okay, also level 1, also general BCom or general students, so I have to satisfy everyone. तो मैंने इस बार दो दो फैक्टर्स से ये सब डिसाइड किया है, ठीक है ना. और इन सब का मैंने z निकाल लिया. z क्या होता है, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा. तो आई हैव कंप्यूटेड द z. ओके, फॉर ईच ऑफ द फैक्टर्स जेड निकाल लिया. तो एक मिनट देखो, जेड अर्निंग्स टू प्राइस का, जेड फ्री कैश फ्लो का. पर जो डेट इक्विटी का जेड निकाला ना, उस पर उल्टा फॉर्मूला लगाया, मीन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एस डी. बिकॉज डेट इक्विटी तो खराब चीज है ना, तो उस पर मीन माइनस एक्स बाय एस डी. गुड चीज में एक्स माइनस मीन बाय एस डी. तो आई कैलकुलेटेड द जेड ऑफ एवरीथिंग. उसके बाद राइट साइड आई हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू का जेड स्कोर, विच इज एन एवरेज ऑफ द टू फैक्टर्स. क्वालिटी का जेड स्कोर, मोमेंटम का जेड स्कोर, लो रिस्क का जेड स्कोर. देन जो वेट्स दिया हुआ था, वो वेट से वेट इंटू वैल्यू स्कोर, वेट इंटू क्वालिटी स्कोर, आई गॉट द कंपोजिट स्कोर. ओके, आपको सारा फॉर्मूला दिख जाएगा. कंपोजिट स्कोर से आई डिड द रैंकिंग. और रैंकिंग में इस बार कौन से 1 2 3 स्टॉक्स आए हैं, 1 फिर से इन्फोसिस आए हैं, बिकॉज वैल्यू को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ना. ठीक है. 2, एक बार वैल्यू को कम इंपॉर्टेंस दें. लेट्स गो टू द वेट्स, लेट्स गो टू द वेट्स. ये इन्फोसिस बार बार क्यों आ रहा है ऊपर, या वैल्यू को गिव 5% वेट. वी डोंट फील दैट वैल्यू स्टॉक्स विल आउट परफॉर्म. वी डोंट 20% weight to quality, 20% weight to quality. We believe momentum will outperform. 50 कितना बचा, 25. Low risk will outperform 25. I think it is 100. Yeah. चलो इस बार क्या आया देखते हैं. Which stocks are coming? तो इस बार the stocks which are coming are the एक तो अपोलो आया है, और एक HDFC बैंक आया है. ओके, HDFC बैंक आया है, नीचे वाला अपोलो आया है, और बीच वाला कुछ अदानी फदानी आया है क्या, देखो. या अदानी. तो HDFC बैंक, अदानी एंड अपोलो. डिपेंडिंग अपॉन मेरे को क्या लगता है कौन सा फैक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है. ठीक है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गया, सर कैसे पता चलेगा कौन सा फैक्टर आउट परफॉर्म करने वाला है. नाउ दैट्स अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज एंड वेरी जजमेंटल एक्सरसाइज. तो ऑल्दो मैंने यहां पे एक शीट डाल दी है उसका, बट उसको समझना समझाना इम्पॉसिबल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वेबिनार. जस्ट शो द शीट. फैक्टर मॉडल डायनेमिक्स, इसमें आई हैव क्रिएटेड सर्टेन मार्केट एंड मैक्रो फैक्टर्स. बिजनेस साइकिल इज अ मैक्रो फैक्टर. Yield curve का slope is a macro factor. Credit spread is a macro factor. Equity volatility regime is a market factor. Market का breadth is a market factor. Valuation का spread is a market factor. And उसके help से we have tried to locate कौन सा factor outperform करेगा, कौन सा underperform. Obviously it goes without saying that sir, हम लोग अगर ये यूज करेंगे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो पैसा कमा पाएंगे क्या. द पॉइंट इज दैट अगर किसी को भी लगता है ना, कोई भी इंसान या कोई भी प्रोग्राम आपको एक सीक्रेट रेसिपी देने वाला है फॉर द पर्पस ऑफ मिंटिंग मनी, तो बात ही क्या था.
तो लेट्स नॉट बी नाइव, देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व। अब इसमें एआई हेल्प कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स एआई हेल्प कर सकता है, ये सब एआई से बनाया हुआ आज सुबह, बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम, ऑब्वियसली आई सैट इन द मॉर्निंग टुडे एंड डिड इट विद द हेल्प ऑफ क्लॉड एंड जीपीटी, ठीक है, बाय गिविंग लॉजिकल कमांड्स। बट रियल लाइफ में जजमेंट कहां काम आएगा? विच फैक्टर्स विल आउट परफॉर्म? व्हाट आर द वेट्स टू बी गिवन टू दोस फैक्टर्स? फैक्टर्स को कौन कौन से वेरिएबल से मेजर करेंगे? फैक्टर्स को कौन कौन से वेरिएबल से मेजर करेंगे? डायनामिक करेंगे, स्टैटिक करेंगे? सर ये जो आपने बोला फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, क्या ये रियल लाइफ में हो रहा है? 100% हो रहा है। प्लीज जीपीटी या गूगल जेमिनाई वॉट एवर कि फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कितना कॉमन है। देर आर न्यूमरस क्वांट फंड्स, there are numerous systematic funds which are using factor based investing. If you ask me, sir, at your level, do you use it? The answer is yes. हम लोग डिफाइन कर रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट रेजीम होता है। वन इज अ गोल्डी लॉक रेजीम, समझ में आ रहा होगा। गोल्डी लॉक रेजीम मतलब सब चीज बढ़िया जाएगा। दी अदर इज अ क्राइसिस रेजीम, क्राइसिस टाइम चल रहा है, ओके। तो अलग अलग रेजीम्स डिफाइन कर रखे हैं, एंड देर इज अ वेक्टर ऑफ कंडीशनिंग वेरिएबल्स विच ट्राइज टू थ्रो अप विच पर्टिकुलर रेजीम विल वर्क, ओके, कि कौन सा रेजीम अभी आने वाला है। अगर गोल्डी लॉक रेजीम है तो आई विल इन्वेस्ट इन रिस्की थिंग्स, अगर क्राइसिस रेजीम है आई विल शिफ्ट माई एलोकेशन टुवर्ड्स लेस रिस्की एंड बाय ऑप्शंस, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट रेजीम्स एंड देर इज अ वेक्टर ऑफ कंडीशनिंग वेरिएबल्स विच इज यूज्ड टू डिफाइन द रेजीम। ऑब्वियसली लेवल 1 स्टूडेंट नहीं समझ रहा होगा, लेवल 2 वाला थोड़ा, लेवल 3 वाला ज्यादा, सीए वाला स्मार्ट स्टूडेंट तो समझ रहा होगा। व्हाट ही स्पीकिंग इज सेंस, इट इज नॉट अ टीचिंग वेबिनार जहां पे टीच करने वाले हैं, इट इज एन एक्सप्लोरेटिव वेबिनार जहां ये बताने वाले हैं कि तुमको जो लग रहा है ना वो सफिशिएंट नहीं है। एआई क्वांट is going to majorly impact the future of finance. Whether you are into regulations, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ऑडिट करने वाला है, ओके, उसके भी एआई एंड क्वांट्स आर गोइंग टू कम इनटू प्ले, उसके बिना उसका नहीं होने वाला है। ही विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव। एंड खैर मेरे को मतलब ही क्या रेगुलेशन से, आई एम अ person of the investing world, of the IB world, of the consulting world, and somebody who is not using AI and quants would find himself to be uncompetitive. Okay, I said at the beginning, dig deep, the attitude, use the tools to dig deep, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू स्केल अप कि सब ज्यादा कवरेज कर पाऊं, जल्दी कर पाऊं काम, मेरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ पाए, आई हैव टू यूज द एआई टूल्स, अदरवाइज आई विल बिकम अनकॉम्पिटिटिव। इट गोज विदाउट सेइंग। आई हैव ओवर हियर क्रेडिट रिस्क का मॉडल्स भी है, शो इट। दिस इज अ क्रेडिट रिस्क का मॉडल कि बैंक्स लोग जब लोन देंगे, दिस इज लाइक वेरी वेरी एफआरएम टाइप्स। वैसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एफआरएम इज मोर इनटू क्वांट्स एज कंपेयर टू सीएफए। एनीबडी हु इज लविंग क्वांट्स कि मेरे को मन कर रहा है काश मैं क्वांट सीख जाऊं सर, ये सारा चीज विदाउट नेसेसरली डूइंग पाइथन एंड आर, कि सब पाइथन आर करना जरूरी है क्या? क्या मेरे को कैलकुलस, डबल इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस आना चाहिए क्या इफ आई वांट टू डू ग्रेट इन क्वांट्स? नो, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे समझाऊं? एवरीबडी इज थिंकिंग दैट यार मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था, मेरे को कभी से मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, मेरे लिए तो ये फील्ड है ही नहीं। दिस इज द स्टुपिडिटी, दिस इज अटमोस्ट स्टुपिडिटी। आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस वेबिनार्स, फिर से रिपीट करूंगा, द पर्सन हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मॉर्गन स्टैनली रिस्क मैनेजमेंट, ही इज, what's his name? Let's see how many people remember. In my earlier webinars, I have told him, our alumni, our student, what's his name? Sumer Bajaj from Bhawanipur College. Bhawanipur College, Calcutta. Okay, and this guy, what is his age? His age is around, I think, 44 or 43. That's his age. So this guy is the executive director of Morgan Stanley का risk management department. And he is not specializing in Python and double integration or differential equations. Those who are specializing in all that are working under him. They are working under him, उसके अंडर काम कर रहे हैं. Because it is not maths which wins the world. It is the logic behind the maths which wins the world. And खासकर अब जब AI आ गया है, you don't need anything.
एनी कोड एनीथिंग नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। कितना बड़ा बेवकूफी है अगर अपने में से कॉमन सेंसिकल पर्सन है। हाउ मेनी पीपल बिलीव दैट इन द ऑडियंस कि उनका कॉमन सेंस जोर का चलता है, दे आर नेचुरली स्मार्ट। Okay, how many people believe that, sir, they are smart, they are naturally smart? I think all of you should say yes. All of you should say yes. This is the first thing that should come into your mind, that what is the issue? कोई पढ़ाई की बात नहीं हो रही है कि तुमने कितना स्कोर किया था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स में, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही है, ये स्मार्टनेस की बात हो रही है। If you are naturally smart and you were a backbencher in your classroom, okay, you were an average student, the world is waiting for you. The world is waiting for you. अगर सुमेर का क्लास 10th 12th में बहुत ज्यादा स्कोर आया होता, he would have joined St. Xavier's or SRCC. The fact that he joined Bhawanipur College at that time, studied FRM with me, I know how was he studying. His attitude was there. He built it up. So I think the biggest problem in the student community is labeling. When parents come with their children and they say that मेरा बच्चा mediocre है, I think you are giving it up. You are calling mediocrity based on the past results and how were examination conducted in schools and colleges and all that. Examinations were conducted based on memorizing and based on reproducing. Okay, based on language कि मैं कितना बढ़िया इंग्लिश बोल पा रहा हूं. Okay, that was the yardstick. And do you think this is the yardstick in the future of finance? No. इंग्लिश नहीं आता है, वेलकम. मैथ्स नहीं आता है, वेलकम. आज तक नहीं पढ़ा था, वेलकम. There's a red carpet treatment for such people. Mind कम यूटिलाइज्ड है, माथा खराब कम हुआ है और अच्छे से पनपेगा, समझ रहे हो? एंड आई मीन इट वॉट एवर आई से, बट एटीट्यूड नहीं है, डोंट कम. एटीट्यूड नहीं है तो डोंट कम, ठीक है? अगर एटीट्यूड नहीं है, डोंट कम. प्लीज डू समथिंग एल्स. डू स्पोर्ट्स, ओके, डू सिंगिंग, डू म्यूजिक, बिकम अ यूट्यूबर. देयर इज सो मच ऑफ करियर दैट कुड बी मेड इन. गो फॉर कुकिंग, ठीक है, गो फॉर वॉट एवर. अगर एटीट्यूड है कि यार ये फाइनेंस और ये फाइनेंशियल स्पेस में पैसा भरा हुआ है, प्रॉपर एटीट्यूड. एंड मेरे को जो बोलना था मैंने शुरू में बोल दिया था, द एबिलिटी टू डिग डीप, दैट्स द एटीट्यूड. यूजिंग द टूल्स, अंडरस्टैंडिंग द टूल्स टू डिग डीप, ठीक है, तो एंड स्केलिंग इट अप बिकॉज यू नो द टूल्स, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर smarter as a result of the usage of the tools. But then सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया by showing the abuse of the tools. AI का hallucination next level का है. Okay, quant का lies next level का है. It's all biased data. Okay, it's all biased data. It's all hallucinated stuff. You have to properly know how to use the tools. आप क्या कमांड दोगे? You are studying a company, ओके, एंड एआई में गए और आप कमांड दोगे, क्रिएट द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल केस फॉर दिस कंपनी. ओके, फुल स्क्रीन प्लीज, स्टॉप शेयर. क्रिएट द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल केस फॉर दिस कंपनी. एंड आई एम सरप्राइज्ड, एक स्टूडेंट ये कमांड दे रहा है, क्रिएट द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल केस फॉर दिस कंपनी एआई में. यानी वो कर रहा क्या है पता है? उसको एक प्रेजेंटेशन देना है, तो उसको लॉजिक देना है, ये स्टॉक क्यों बाई होना चाहिए, और वो एआई को बोल रहा है कि क्रिएट द स्ट्रॉन्गेस्ट बुल केस फॉर दिस कंपनी. तो कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है, एआई उसको पॉजिटिवली इन्फर कर रहा है. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग. हमने चेक किया कि एक से फूड डिलीवरी कंपनी है, जोमैटो टाइप है, और उसमें नंबर ऑफ ऐप डाउनलोड्स हैज रियली गॉन अप. नंबर ऑफ ऐप डाउनलोड्स हैज गॉन अप. दो इंटरप्रिटेशन. पहला इंटरप्रिटेशन है इसके कारण जोमैटो का कस्टमर्स बढ़ेगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा. दूसरा इंटरप्रिटेशन है इसका मतलब जोमैटो बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है मार्केटिंग में टू मेक दी ऐप डाउनलोड्स, एंड बहुत ज्यादा डिस्काउंट देके कैसे न कैसे रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहा है, जबकि लॉस पे लॉस होने वाला है. हाउ डू यू नो? एक बैंक ने, अ बैंक हैज अनाउंस्ड 300 फ्रेश रिक्रूटमेंट, ओके, फॉर साइबर एक्टिविटी, डिजिटल एक्टिविटी. एक बैंक ने से, बंधन बैंक कैलकाटा का, उसने 300 हायरिंग अनाउंस कर दिया है डिजिटल स्पेस में. इट कुड बी गुड. बंधन बैंक डिजिटल स्पेस में एक्सप्लोर करने वाला है, साइबर रिस्क को टैकल करने वाला है वगैरह. इट कुड बी बैड कि बंधन बैंक जो है, ठीक है, उसका कॉस्ट बढ़ने वाला है, नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट खराब जाएगा, या उस पर अट्रीशन हो रहा है, एग्जिस्टिंग लोग छोड़ रहे हैं, इसलिए नया वाला हायर कर रहे हैं. आर यू गेटिंग मी?
हर चीज को दो तीन नजरिए से देखा जा सकता है, वो नजरिया कहाँ गया वो तो आपका होगा. व्हाट कैन एआई डू? Okay, AI cannot be too opinionistic. AI can be asked, for example, the command, do not give any biased opinion, separate facts from judgment, on the basis of facts, speak out कि जो फाइनेंशियल्स में है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में और जो एमडीए में मैनेजमेंट ने कमेंट्री किया है उसका इनकंसिस्टेंसी बताओ. दिस इज द प्रॉम्प्ट यू शुड पुट. कि जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया है, जो अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने बोला है वर्सेस जो इनका रिजल्ट्स है, वो उस पे वो बताओ ना. जो वॉक एंड टॉक के बीच में डिस्क्रिपेंसी बताओ. अगर मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था ऐसा होगा. द बेस्ट एग्जांपल मैं आजकल क्लास पे दे रहा था, केन्स टेक्नोलॉजीज. केन्स टेक्नोलॉजीज, इफ यू हैव टाइम गो टू स्क्रीनर एंड चेक आउट. ओके, गो टू स्क्रीनर एंड चेक आउट एंड यू विल फाइंड दैट जो केन्स टेक्नोलॉजी है उसने कैसे लंबा चौड़ा गाइडेंस दिया था. उस समय स्टॉक का दाम करीब 6,000 था एंड बिकॉज ऑफ गाइडेंस द स्टॉक वेंट टू 7,700 टाइप एंड उसके बाद इट कुड नॉट मीट द गाइडेंस एंड अकॉर्डिंगली द स्टॉक फेल टू लैंग्वेजिंग लेवल्स. तो अकॉर्डिंगली एआई विल बी यूज फॉर दिस बिकॉज तुम कितना पढ़ लोगे, तुम कितना बड़ा रिपोर्ट पढ़ लोगे, तुम कैसे मैनेजमेंट कमेंट्री को बैठा लोगे, तुम कैसे अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लोगे. सपोज अभी मैं बैठा हूं और किसी कंपनी का अर्निंग्स कॉल चल रहा है. आई एम ए रेप्यूटेड एनालिस्ट वर्किंग इन ए रेप्यूटेड फर्म और मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. अगर मैं एआई को यूज कर रहा हूं व्हेन द दिस थिंग इज गोइंग ऑन फॉर द पर्पस ऑफ थ्रोइंग इनसाइट्स, उसी समय ट्रांसक्रिप्ट आते जा रहा है और इनसाइट्स आ रहा है सेम टाइम. हो सकता है देयर आर टूल्स, लोग ग्रेनुला को यूज कर, ग्रेनुला का बाप आ गया है. फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन द टोनैलिटी ऑफ द आंसर यू कैन अंडरस्टैंड मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है. Some people may be understanding, some may not be understanding what I'm saying. Not using AI का tools is a biggest blunder. एनालिस्ट टैक प्रोग्राम में इसलिए हमने जो भी कराया फाइनेंशियल मॉडलिंग में एआई को यूज करके करवाया. उसके अलावा थर्ड मॉड्यूल उसका एआई इन फाइनेंस पूरा का पूरा वेट कर रहा है. हाउ prompting should be done, what is the way in which, what are the tools, how should it go about, okay where are you making the mistakes, wrong prompt से क्या होगा, right prompt से क्या होगा, कैसे एक्ट कर सकते हैं, कैसे नहीं एक्ट कर सकते हैं. ठीक है, वो सारा अपार्ट फ्रॉम जो मिडिल वाले में सेक्टर का स्टडी एंड कंपनी का एनालिसिस चल रहा है. somebody, लेट मी टॉक करियर वाइज. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए या सीए कर रहा है. कोई पर्सन सीएफए है, सीएफए कर रहा है. कोई पर्सन सीए कर रहा है, कोई पर्सन सीएफए कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है. सीए कर रहा है, सीएफए कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, दोनों कर रहे हैं. बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है. वो जो सीए वाला इंसान है, ही शुड बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट वेयर हिज लाइफ इज हेडेड टुवर्ड्स. दे शुड बी साइमल्टेनियसली परस्यूइंग सीएफए और एफआरएम. कल I had a visitor by the name of Nikunj Khaitan. I think that was his name. Yeah, Nikunj Khaitan. Yes. Nikunj Khaitan कैलकाटा का काकुड़गाची में रहता है. AIR 12 CA final this time. AIR 12 close friend, buddy friends with Ritich Saraf. AIR 2 CA final this time. ओके, दोनों के दोनों कैलकाटा के ऊपर निहाल हुआ इस बार. दोनों कैलकाटा से बचपन में बड़े, दोनों के दोनों एसआरसीसी में गए, दोनों के दोनों सीए के साथ सीएफए कर रहे हैं. You will check all the chartered accountants who are getting rank nowadays. You will find mostly they are doing CFA. Not if not then later. Why? Because they know that उनका जो सेक्टर है रेगुलेशंस, उसमें वो पैसा नहीं है, उसमें वो करियर नहीं है. करियर है एब्सोल्यूट सेंस में, बट रिलेटिव लेवल पे वो करियर नहीं है. दे गॉट टू कंबाइन सीएफए और गॉट टू कंबाइन एफआरएम. जो लोग सीएफए कर रहे हैं एंड दे आर लाइकिंग द स्टफ, एटीट्यूड है, मजा आ रहा है, दे गॉट टू कंबाइन दैट विद एफआरएम. इट्स अ वंडरफुल थिंग. और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री. इफ यू आर निग्लेक्टिंग इट, कोई आपको बोल दिया है डिग्री से कुछ नहीं होता है, केवल नॉलेज. द पॉइंट इज दैट कितने सारे लोग हैं, मैं कैसे बताऊं, जिनके पास भर भर के नॉलेज था पर उनको गेट खुलता नहीं है, इंटरव्यू टेबल पे बैठा नहीं जाता है. एंड जो इंटरव्यू टेबल पे बैठा लेता है वो उनको एक्सप्लॉइट करना चालू करता है, ये बोल के आपके पास तो कोई डिग्री नहीं है. where he should get a 30 lakh का पैकेज, the package comes down to 8 lakh, 9 lakhs, 10 lakhs. The growth doesn't happen. साफ साफ विजिबिलिटी है. ठीक है, तो कोई ना कोई कोर्स या कोई दो प्रोग्राम करना जरूरी है.
सर केवल सीएफए करे तो काफी नहीं है कि एकदम काफी है? एकदम काफी है। केवल सीए करे तो मेरे को लग रहा है इनएडिक्वेट आज के डेट पे। और जो करे वो अच्छे से करे, पास करने के लिए नहीं। बिकॉज बहुत जन एफआरएम बुरी तरह से कर रहे हैं, पीपल आर डूइंग एफआरएम जस्ट रेकलेसली। माने पास हो गए, लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं जानते हैं, दे नो नथिंग। सम पीपल आई थिंकिंग एफआरएम टू बी जस्ट एक्सेल शीट्स, कि एक्सेल पे एक्सेल कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट अबाउट एक्सेल। इट इज अबाउट द इंट्यूशन बिहाइंड एक्सेल, इंट्यूशन बिहाइंड ईच एंड एवरी फॉर्मूला। जैसे मैं अभी, आई नो मेरा वेबिनार था, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो मैं जब समझाना चालू किया ना, क्वालिटी, वैल्यू, मैंने अच्छे से नहीं समझाया, दिस नॉट द वे आई एक्सप्लेन। बट तब भी मैं एक फ्रेश शीट पे गया, मैंने क्वालिटी का थोड़ा मतलब बताया, उसके बाद मैं डेटा दिखाया ना, एंड पीपल स्टार्ट स्ट्रेट अवे डेटा डेटा डेटा। एम आई सिटिंग ओवर हियर टू शो माई एक्सेल का चैंपियनशिप? नो, आई एम सिटिंग ओवर हियर टू एक्सप्लेन द स्टफ। एक्सेल इज जस्ट अ मीडियम, और एक्सेल तो बना देगा ना क्लॉड। यू अंडरस्टैंडिंग? आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्या एक्सेल यूज कर लोगे? सो अगर किसी को डीपली जानना है इन सब एरियाज में कि सर, ये जो आपने ट्रेडिंग वाला बोला, वो ट्रेडिंग वाला तो ठीक से नहीं बोला आपने, तो कॉइन टॉस बोल दिया, ठीक से बता सकते हैं क्या? तो मैं बता रहा था आप लोग को, आई डोंट नो आई हैव अनाउंस्ड और नॉट, 26 तारीख को, मार्क दैट डेट ऑन योर कैलेंडर, 26th ऑफ दिस मंथ, श्रेयांश दादा is going to take a session on the India AI portfolio. Never ever is it has happened anywhere. It is a portfolio which is built by AI to beat Nifty in the next 3 years. Pure AI का portfolio, it is picking social media tweets. वो portfolio इस तरह डिजाइंड है कि वो सेंटिमेंट्स भी पिक कर रहा है, ऑल्टरनेट डेटा ही पिक कर रहा है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जो डेटा है वही पिक कर रहा है। जो ओल्ड एनालिस्ट है वो तो केवल एनुअल रिपोर्ट, अर्निंग्स कॉल देख रहा है, मैनेजमेंट से मिल रहा है, ठीक है। और एआई जो है वो सेंटिमेंट्स भी पकड़ रहा है कि ट्विटर पे क्या बात हो रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या बात हो रहा है, और ऑल्टरनेट डेटा क्या रिलीज हो रहा है, वो सारा का सारा कैप्चर करके इंडिया एआई पोर्टफोलियो डिजाइन्ड टू बीट निफ्टी ओवर द नेक्स्ट 3 years. Okay, so he will show the entire stuff, how it is being done and all that, if you are interested. सर क्या वो जानने के बाद हम करोड़ों कमा पाएंगे क्या? Once again stupid question. Once again stupid question. Nobody is going to teach you the recipe for minting money. I repeat, not me, not anybody. They are going to teach you processes. कहीं ना कहीं it will click into you कि तुम किस में फिट करते हो, तुमको कौन सा अपील कर रहा है, and that will become your niche. You'll have to find out your own niche. And obviously, all this takes time, effort, passion. In case you do not have that, you are least interested, just do not. When we are the least people who are of use to you, believe me. हम लोग के वेबिनार्स पे वगैरह एकदम नहीं अटेंड करना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑफ अ डिफरेंट मेकअप, ठीक है। खुद के अंदर इतना जोर का पैशन है, तो वही पैशन से कराते, उतना डीपली कराते, और केवल खोलना ही सिखाते हैं डीपली, तो हमें समय लगता है, ठीक है। We take our own time, and we are happy with people who share with us the same mentality. शीट कहाँ सेंड होगा? जो लोग भी वेबिनार अटेंड कर रहे हैं अभी, उनका तो डिटेल्स हमारे पास आया ही है, डोंट यू वरी, शीट शेयर हो जाएगा। जो लोग यूट्यूब वगैरह पे है, वो लोग को मैसेज वहां पे भेजना पड़ेगा, जिससे हम लोग शेयर कर पाए, ठीक है। सो दैट वाज द सबमिशन फ्रॉम माय साइड। मैं टाइम देख रहा नहीं था, ये पहली बार देखा। आई थिंक आई स्पोक फॉर अराउंड 1 hour, ठीक है। और बहुत सारे मॉडल्स मैंने दिखाए नहीं, क्रेडिट रिस्क मॉडल्स वगैरह, वो आने वाले सेशंस में कभी ना कभी होता रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। और इतना सारा चीज दे देंगे तो देख भी थोड़ी पाओगे। आदमी को क्या होता है इकट्ठा। आई रिमेम्बर देयर वाज सम स्टूडेंट, एंड ही वाज सेइंग दैट सर देखिए मेरा लैपटॉप, मेरे पास इसका नोट्स है, उसका नोट्स है, इसका मॉक्स है, उसका मॉक्स है, इसके लेक्चर्स है, उसके लेक्चर्स है। मैंने उसके पूरे लैपटॉप पे ना सारे दुनिया भर के सीएफए के लेक्चर, सीएफए के नोट, सीएफए के मॉक, सीएफए का बुक, सीएफए का ये वो सब है। एंड इसके कारण वो बोलना चाह रहे हैं मेरे को तो पास होना ही चाहिए था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट गाय इज सेइंग दैट आई शुड हैव पास्ड, लुक एट दिस। भाई तूने क्या किसी एक चीज को भी ठीक से किया? तो मैं अगर 50 चीज शेयर भी कर दूं आपको, क्रेडिट रिस्क का मॉडल, ऑल्टरनेट डेटा का मॉडल, ठीक है, वगैरह, आप ऐसे नहीं कर पाओगे। आपको एक या दो चीज जो शेयर हुई है फैक्टर बेस्ड मॉडलिंग का, उसके अंदर घुस जाओ, एंजॉय करो, यूज जीपीटी, यूज क्लॉड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग द सेम, एंड यू विल रीच समवेयर।
जो लोग लेवल 1 के स्टूडेंट है, they've just started, I started around a month back or 1.5 month back. They may feel that's a बहुत सारा चीज एकदम ऊपर से चला गया, जैसे ऋतुराज बोल रहा था, चीज ऊपर से चला गया, बट द थीम, ये सब वेबिनार्स अटेंड करके तो पता चलता है ना लाइफ को कहाँ ले जाना है, किस डायरेक्शन में. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, भूल गया, इफ यू आर जस्ट नोइंग एंड नॉट शोइंग, उससे काम नहीं चलेगा. जो मैं मॉडल दे रहा हूं उसके बेसिस पे एक्चुअल स्टॉक्स लेके, निफ्टी को लेके खुद का मॉडल बनाना, खुद का मॉडल बना के एकदम हम्बल वे में लिंक्डइन पे डालना कि आई अटेंडेड अ वेबिनार, ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव क्रिएटेड अ मॉडल फॉर दिस. You all can comment upon the same. It may be wrong. Do not invest on that basis. I'm just a beginner. Start showing your footprint on social media or LinkedIn. Come out of Insta. LinkedIn भी वैसे वही बन रहा है Facebook. बट ठीक है, अभी क्या करें, वही है. Instead of complaining, we have to adopt what is there. But try to start posting whatever you have learned. Start expressing yourself without thinking about the fact that the world will judge you. इसलिए पहले से तो हाथ जोड़ लो कि मैं बच्चा हूं, मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरा मारना मत, मैं ये चीज शेयर कर रहा हूं. ओके, दिस इज द फर्स्ट शेयरिंग फ्रॉम माय साइड. ऑफ कोर्स यू ऑल कैन कमेंट. तो आप अपने आप को नीचे होकर शेयर करना स्टार्ट करो. एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ यू आर sophisticated enough, you will look at the model, make your own model, share the same, share it with your firm, go to your employer, tell it that we should start factor based investing. उस पर वर्क करना चाहिए. फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक टीम बनाओ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करो एक्चुअल डेटा से. ओके, बैक टेस्टिंग डेटा से. बैक टेस्टेड में रिमेंबर एक क्या बोलते हैं, ट्रेन डेटा, एक टेस्ट डेटा होगा. यूज मशीन लर्निंग फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग दिस. सब मशीन लर्निंग में तो आता नहीं है मेरे को. अरे आएगा ना, अब तो है क्लाउड वगैरह सब. सोचो तो सही कैसे मशीन लर्निंग को यूज करें, कौन कौन से मॉडल्स है. सीएफए में तो सब कुछ है, एफआरए में तो उससे भी ज्यादा है. ऑल द मशीन लर्निंग, ऑल द बिग डेटा, ओके, एवरीथिंग इज देयर इन दीज टू प्रोग्राम्स. सीए में नहीं है. सीए में आएगा, बीकॉम में जैसे आता है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिग डेटा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. 6 नंबर. तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी हम लोग उसके ऊपर लिख के आएंगे 6-8 नंबर का, जैसे बचपन में लिखते थे. सीए वही चल रहा है. और वो लोग बोलेगा क्या, nowadays in our syllabus we have big data, we have machine learning, we have artificial intelligence. ठीक है. एंड उसके बाद जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होगी उसमें कुछ बच्चे आ जाएंगे बेचारे, इन ऑल प्रिपेयरिंग पीपीटी एंड ऑल दैट ऑन एआई एमएल वगैरह वगैरह. चलो कुछ तो हो रहा है, बट उससे कुछ होगा नहीं. रियल स्टफ इज नॉट हैपनिंग. ओके, अंजुल, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. Sir, I have been taking notes of questions, and I really think that you have pretty much covered everybody's doubts. They wanted to understand about the career as quant trading, and if what are the AI tools they should be using. So I think you have already covered it in great detail, and I am sharing the number. Yeah, please share the number so that if they want to ask more, they want individual counseling. Okay, they want dedicated कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, how should they evolve. So please share the Yes. number so that they can send us the number and we can then revisit the same. Yes, definitely. So, guys, this is the number. I have shared it in the chat. Please refer it. आपके जो भी career related doubts and queries है, personally आपके, कि अगर आप CA कर रहे हैं, CFA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BCom student हैं, तो how should you move forward, या what should you know, whatever you have understood from this session, how should you take this forward? तो please reach out on this number because yes, sir, please. हाँ, एक चीज मेरे को बोलना था कि मैं खुद पहले हम्बल हो जाऊं. अगर किसी को ऐसा हुआ कि मैंने उसका टाइम वेस्ट किया, ओके, आपका प्रेशियस 1 आवर था, यू कुड हैव स्पेंड विद फैमिली, सबसे पहले आई एम सॉरी. ठीक है ना, बिकॉज ये जो सेशन है एआई क्वांट, इसमें इट वाज नॉट पॉसिबल टू टीच समथिंग वेरी वेरी इंटेंसिवली. द पर्पस ऑफ द सेशन वाज जस्ट टू ओपन योर आईज टू द वर्ल्ड दैट इज कन्फ्रंटिंग अस इन फ्यूचर. ठीक है, तो आई एम रियली रियली सॉरी इफ आई वेस्टेड somebody's टाइम. ओके, तो दैट्स वेरी नेसेसरी टू से राइट अवे. यस अंजू. Yes, and to add a little to it, we are having sessions. Even sir is going to take a career in finance session where we it is going to be more centered towards what are the careers and opportunities. This was a very heavy quant finance session. It was not generic at all. So any information you need about the webinars, you can get in touch with our social media, or you can directly call on these numbers to inquire about any kind of queries you have.
Okay, perfect. I think that is going to be pretty much of it. Okay, sir, I think we are good to go. We can close this session. थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग एंड कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी अपने पाथ्स क्रॉस नहीं होते, अगर ऐसा होता है किसी के साथ, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट विशेस, बिलीव मी, देयर इज नो नीड टू डू एनी प्रोग्राम, नो सीए, नो सीएफए, नो एफआरएम, एंड नो नीड टू डू फ्रॉम अस, ठीक है? यू जस्ट केम टू नो ऑफ इट, नाउ डिसाइड अपॉन योर ओन सेल्फ ऑन हाउ टू carve your career, be happy, stay happy, that's it. That's a great ending, I think. Okay, I think everyone can say their goodbyes now, and you can reach out to our team anytime. We would feel very nice to host you. And also, the link of this session plus the link of the webinar that sir have mentioned, the AI beats Claude, Claude beats Nifty 50 in next 3 years. We are going to share those links with you too. Hope you can get this session. If somebody faced some kind of issues while the session because of their network, you can check out this session on YouTube too. It will be soon out. Thank you so much, guys, for joining, for taking out your precious time. Thank you so much, sir, for guiding all of us on a Sunday morning. Bye bye. Bye bye. Bye bye.